हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज गुड. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू यूनिट, that is polymers. Okay, from exam point of view, its weightage is very small, that is for 3 marks. Okay, but it's very scoring and it's really very important because in our day to day life, like as the science and tech is developing, so we attempt every time to make our life comfortable, right? Much more luxury we want, and for that luxury, polymer is the backbone. Okay, means in our day-to-day life we use many more things which are made up of polymers. In our house only you will see number of products which are of polymer, right? So polymer is that important. In fact, we can say polymer is the backbone of four main industry, and that are like plastic is all about polymer, right? Elastomers, that is all about polymer, like the tires we use, the automobiles, things that all that tires and jo rubbles wale aate hain, that all things come under elastomers, right? Then fibers, cloth, jute वगैरह वो सारी चीजें. Okay, and the last one is paint and varnish. These four industries are like the polymer is backbone of it. Okay, so polymer is very important, guys. Now what is polymer? क्या होता है polymers? As the word suggests, poly मतलब many, mers मतलब unit. Okay, so polymers is the word which is coming from Greek word. Okay, where poly means many and mers mean unit. Okay, so I hope this much is clear. So shall we continue with the unit? Okay, आई होप आपको समझ में आ गई कि पॉलीमर हमें क्यों पढ़ना है. लाइक इन आर डे टू डे लाइफ वी यूज सिंथेटिक फाइबर्स, राइट? हम रबर्स यूज करते हैं, देन हम टॉयज यूज करते हैं विच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. ओके, सो देर आर मेनी मोर थिंग्स. ओके, सो what are polymers then? So polymers are the micromolecules. Okay, they are micromolecules, that means they have high molecular weight, their mass is very much high. Okay, and they compose of small repeating units called monomers. Here this is important, smaller repeating units. Okay, so this is the definition of polymer. What is polymer? So polymers are the micromolecules having high molecular weights and composed of smaller repeating units. ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसका मॉलिक्यूलर मास या वेट बहुत ज्यादा है और जो किससे बने हैं, जो स्मॉल यूनिट से बने हैं, जो कि रिपीट हो रहा है बार बार, और उसी को हम बोल रहे हैं मोनोमर्स. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर. ओके, so now the simple molecules which is going to repeat in the polymers are known as monomers. The simple molecules which we use to form the polymer, that are known as monomers, या फिर polymers जिन simple molecules से बना है उन्हें हम बोलते हैं monomers. Now, all polymers are micromolecules, but all micromolecules are not polymers. What does this means? Okay, all polymers are micromolecule. मतलब जितने भी polymer है, they have high molecular weight. वो सारे के सारे micromolecules है. लेकिन सारे micromolecules polymer नहीं है. Why this is so? Because polymer जो है ना, it is made up of repeating units. Polymer किससे बना है? स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से बना है. एक यूनिट होगा वो बार बार रिपीट होगा जिससे कि आपका बड़ा चेन बनेगा, पॉलीमर बनेगा, राइट? लेकिन माइक्रोमोलिक्यूल जरूरी नहीं है रिपीटिंग यूनिट से ही बना हो. ओके, लाइक कंसिडर द एग्जांपल ऑफ क्लोरोफिल. Chlorophyll is a micromolecule, right? Why? Because it has high molecular weight, high mass, right? But it is not a polymer. It is not a polymer because it is not made up of repeating units. ओके, सो दिस इंडिकेट्स कि जितने भी पॉलीमर्स है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स तो है, लेकिन पॉलीमर्स जो है ना वो रिपीटिंग यूनिट से बनते हैं, इसीलिए सारे के सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स. ओके, नाउ द प्रोसेस by which this simple molecule जो हम बात कर रहे हैं are converted to polymer is known as polymerization. इसको क्या बोला जाता है? Polymerization. Now look here, these are monomeric unit. ये simple molecules है आपके. Okay,
There are number of thousands of simple molecules which come together. They undergo a process known as polymerization to form a पॉलीमर. अभी इस पॉलीमर में क्या होता है, ये जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं ना, ये लिंक हो जाते हैं एक दूसरे से बाय अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, एंड दे रिजल्ट इनटू अ चेन, लॉन्ग चेन. ठीक है, तो अभी देखिए ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है और ये रिपीट हो रहे हैं, small repeating units, right? So that's why it is known as polymer. Poly matlab many and mers matlab unit. Okay, mers matlab unit. I hope this much is clear. Process का नाम क्या है? Polymerization. What are the examples of polymer then? Polythene, okay, which we like nowadays it is banned, but still people use it, okay, and I fail to understand why this is so, because it really creating a large amount of pollution in our environment. Okay, पॉलीविनिल क्लोराइड है जो हम पीवीसी जिसे बोलते हैं, राइट? पीवीसी इज नथिंग बट पॉलीविनिल क्लोराइड. पॉलीस्टीरीन है. ओके, ये सारे पॉलीमर्स के एग्जांपल है. तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या हुआ? The monomeric unit which we use to make the polymer named polythene is ethene. मतलब इथीन के बहुत सारे यूनिट एक साथ आएंगे and they will form a chain known as polythene. पॉलीविनिल क्लोराइड इज अ पॉलीमर, तो इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या हुआ? विनिल क्लोराइड. इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या है? विनिल क्लोराइड. पॉलीस्टीरीन है तो इसका मोनोमेरिक यूनिट है स्टीरीन. इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या है? स्टीरीन. ओके, आपको पॉलीमर के नाम याद रखने हैं, आपको मोनोमर्स कौन सा यूज हो रहा है उस पॉलीमर में वो भी याद रखना है. ओके, मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. Now polymers are classified on the basis of four factors, okay, like based on source. किस source से आपको polymer मिल रहा है, on the basis of that. Then based on structure, polymer का structure कैसा है, that is again another classification. ओके, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, आपका जो पॉलीमर है उसमें किस तरीके के मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, किस तरीके की बॉन्डिंग है, किस तरीके के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉलीमर इज क्लासिफाइड. एंड लास्ट इज ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब मोनोमर से पॉलीमर जब बनता है तो जो प्रोसेस होती है पॉलीमराइजेशन वो किस तरीके का हो रहा है, राइट? वो प्रोसेस कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर इज लास्ट क्लासिफिकेशन. ओके, so one by one we will study this in detail. The first classification is on the basis of source. In this, the polymer are of three types, like natural polymer, semi-synthetic polymer and synthetic polymer. Okay, on the basis of structure they are again of three types: linear polymer, branch chain polymer and cross-link polymers. Okay, on the basis of intermolecular forces जो उसमें present है, they are classified as in four types: elastomers, fibers, thermoplastics and thermosetting polymer. Okay, and last is on the basis of mode of polymerization, and that is your addition polymer and condensation polymer. Okay, so one by one we will study all the classification in detail now. First is based on the origin, जहां से आपको मिल रहा है. So first one is natural polymer. Now what the word suggests, natural, matlab these are the polymers which are obtained or isolated from natural materials, okay, which are obtained from nature, right? They are called as natural polymer. Now nature में you can obtain this or isolate this polymer from plant source or from animal source. Okay, so examples are cotton, silk, wool, rubber, then you have starch, then you have carbohydrate, then you have proteins, then jute. Okay, all these are the examples of natural polymer. Fine. Synthetic polymer, what the name suggests, synthetic matlab isko synthesize kar rahe, they are man made. Okay, the polymer which are synthesized in laboratory. Okay, kahan pe synthesize ho raha hai? लैब में सिंथेसाइज हो रहा है. ओके, फ्रॉम लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड आर कॉल्ड एज सिंथेटिक पॉलीमर, लाइक पॉलीथीन. ओके, नायलॉन है, टेरिलीन है,
All these are the polymer which are synthetic polymer. They are synthesized in laboratory. Okay. Semi-synthetic polymer which is in between these two, natural and synthetic. अभी natural तो nature से मिल रहा है, synthetic lab में बन रहा है, ये है semi-synthetic. मतलब ये natural भी है और synthetic भी है. तो ये कैसे? So these are the polymers which are derived naturally. मतलब nature से मिल रहा है, लेकिन हम उस पे क्या कर रहे हैं, हम उसका chemical modification कर रहे हैं just to change its properties. Okay. लाइक कंसिडर रबर है. रबर इज अ नेचुरल पॉलीमर. ओके, वो हमें नेचर से मिल रहा है, लेकिन अगर हम उसका हम उस पे केमिकल मॉडिफिकेशन करें, हम लैब में उस पे सल्फर की एक्शन करें, तो दैट इज अ न्यू काइंड ऑफ पॉलीमर, दैट इज वल्कनाइज्ड रबर. राइट. तो हम जब जब कोई पॉलीमर आपको नेचर से मिल रहा है, लेकिन जस्ट टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज, उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसको और बेटर बनाने के लिए हम जब उस पे केमिकल रिएक्शंस करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, ओके, केमिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं, दैट टाइम दे आर नोन एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. सेल्यूलोज, टेक एग्जांपल ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर, लेकिन जब हम सेल्यूलोज का एसिड एसिटिक अनहाइड्राइड से या एसिटिलेशन करते हैं, तब हमें एक नया पॉलीमर मिलता है. ओके, दैट इज एसिटेट सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसिटेट, सेल्यूलोज डाइएसिटेट बनता है. सो अगेन दैट इज एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. ओके, रेयन इज एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. फाइन, आई होप दिस मच इज क्लियर. सोर्स सबको समझ में आ गया. सोर्स से 3 पॉलीमर, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक. जस्ट रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ ईच क्लास. ओके, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. किस तरीके का पॉलीमर का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे. ओके, लीनियर पॉलीमर. लीनियर पॉलीमर कैसा होता है? लीनियर पॉलीमर इज द पॉलीमर विच फ्रॉम लॉन्ग चेन. स्ट्रेट चेन होगी, दिस इज स्ट्रेट चेन होगी, राइट, विदाउट ब्रांचिंग. यहाँ पे कहीं पे ब्रांच नहीं है, यहाँ पे कहीं पे साइड चेन नहीं है. मोनोमेरिक यूनिट आएंगे एंड दे विल अटैच टू ईच अदर इन अ लीनियर फॉर्म. ओके, ये मोनोमेरिक यूनिट है जो आपको सर्कल में दिख रहा है. फाइन, सो दिस इज योर लीनियर पॉलीमर. आई होप दिस मच इज क्लियर. नेक्स्ट इज ब्रांच पॉलीमर. ब्रांच पॉलीमर कैसे होते हैं? विच हैव ब्रांचेस. ठीक है, अभी देखिए ये लीनियर चेन है और इसको रैंडम मतलब कहीं कहीं पे ब्रांचेस है. ठीक है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, साइड चेन्स है. ओके, सो दैट टाइम दे आर नोन एज ब्रांच पॉलीमर. नाउ अभी मुझे एक बात बताइए, लीनियर पॉलीमर दे आर हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट भी उनका बहुत ज्यादा है. दे हैव हाई डेंसिटी. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. इन केस ऑफ ब्रांच पॉलीमर दे हैव लो डेंसिटी, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. Remember this thing. Okay, if we talk about the example of linear polymer, example is polythene and PVC. Polythene, this is example of linear polymer. In case of branch polymer, example is polypropylene. Example is polypropylene. Branch polymer has low tensile strength, whereas linear polymer has high strength, tensile strength. Okay, next is cross link polymer. जब हम क्रॉस लिंक पॉलीमर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो पॉलीमरिक चेन्स है, दिस इज फर्स्ट पॉलीमरिक चेन, दिस इज सेकंड पॉलीमरिक चेन, दिस इज थर्ड पॉलीमरिक चेन. ओके, this polymerase chain they get connected to each other by a covalent bond. ठीक है, to form a network like structure. ठीक है, इंटरकनेक्ट हो जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से. दिस इज डाइसल्फाइड बॉन्ड. ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, दिस आर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. तो इससे क्या बन गया? 3D नेटवर्क बन गया, जो नेटवर्क पॉलीमर जो होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर. ठीक है, जिसमें बहुत सारे इंटरकनेक्शंस होते हैं, दैट आर नोन एज क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस नेटवर्क पॉलीमर. ओके, ये दोनों सेम ही चीजें हैं, बस इसमें बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं. इंटरकनेक्शंस जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दैट इज कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर बन जाता है. क्रॉस लिंक पॉलीमर में बहुत कम इंटरकनेक्शंस होते हैं. ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर.
अभी क्रॉस लिंक पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर के एग्जांपल्स क्या है, तो बेकलाइट इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर, वल्कनाइज्ड रबर इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर. ठीक है, प्लीज रिमेंबर द एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं. फाइन. Bakelite, vulcanized rubber, then melamine, formaldehyde, all these are the examples of cross-linked polymer. I hope this much is clear. Cross-linked polymer, they are hard, they are rigid, they are brittle. Okay, हार्ड होते हैं क्योंकि लिंकिंग हो गई है बहुत सारे पॉलीमरिक चेन्स में, तो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं. ठीक है. सो जब हम बेकलाइट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल. बेकलाइट एक ऐसा पॉलीमर है, क्रॉसलिंक पॉलीमर है, जो बहुत ज्यादा हार्ड है, विच वी यूज इन स्विचेस. जो स्विच होता है ना, वो बेकलाइट के बने होते हैं. ओके, सो आप उससे पता कर सकते हो कि वो कितना ज्यादा हार्ड है. फाइन. आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, नेक्स्ट इज बाय द मोड ऑफ फॉर्मेशन, मतलब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस किस तरीके का हुआ है, उसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन है जिसमें पॉलीमर दो तरह के होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स. ओके, फर्स्ट इज द पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, which is formed by addition of monomers repeatedly. मतलब मोनोमेरिक यूनिट बार बार ऐड हो रहा है, रिपीटेडली वी आर एडिंग मोनोमेरिक यूनिट. ठीक है. And the polymer which we get is without the removal of any byproduct. Without the removal of any byproduct, मतलब जितने मोनोमर एक यूनिट हमने लिए वो सारे ऐड हो गए to form a polymer, और उसमें कोई बाय प्रोडक्ट का रिमूवल नहीं हुआ है, विदाउट रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट. ठीक है. एडिशन रिएक्शन कैसा होता है, जितना रिएक्टेंट हमने लिया सारा के सारा ऐड हो जाता है ना, राइट. उसी तरीके से एडिशन पॉलीमर, जितना भी इथीन आप लोगे वो सारा की सारा ऐड हो जाएगा, जितना भी मोनोमर आप लोगे वो सारा की सारा ऐड हो जाएगा टू फॉर्म अ पॉलीमर. देयर इज नो बाय प्रोडक्ट. ठीक है. तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना आपका पॉलीमर का, ये पॉलीमर है, कंसिडर पॉलीथीन है जो इथीन से बना है. ठीक है. दिस इज द एडिशन पॉलीमर. तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा पॉलीथीन का, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ योर मोनोमेरिक यूनिट्स. मतलब जितने मोनोमेरिक यूनिट्स आपने लिए उसका जितना वेट है उतना ही आपके पॉलीमर का वेट होगा. ओके. So this polymer contain all the atoms of monomer, hence their molecular weight are integral multiple of monomeric unit. ठीक है. Generally, the addition polymers are formed from unsaturated compounds. ठीक है. अल्कीन से बनते हैं, जनरली अल्कीन्स अल्काइन से बनते हैं आपके your addition polymer. ठीक है. So टेफ्लॉन, polyethylene, polypropylene, PVC, all these are addition polymers. ठीक है. इथीन है, देखिए यहाँ पे इथीन है, नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमने लिया, इट विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन. दिस इज N. ये जो सिंगल बॉन्ड था ये क्लिव हो गया. ठीक है. ये क्लिव हो गया तो एक जो नया CH2 आएगा वो इधर से अटैच होगा और इधर से अटैच होगा, तो वो डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन गया. ये देखिए ये आगे चेन कंटिन्यू होगी और ये ऐसे रिपीटिंग यूनिट्स बनते जाएंगे चेन के अंदर, राइट. And ultimately there are number of CH2 units and this is your polyethylene. ओके. जब हम इसका पूरा रिएक्शन देखेंगे तब हम आगे पढ़ेंगे ये बनता कैसे. ओके. फॉर अ वेल एडिशन पॉलीमर सबको समझ में आ गया. इट इज फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ मोनोमर्स रिपीटेडली विदाउट रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट. जनरली ये जो बनते हैं दे आर फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्कीन से बनते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल्स आपको पता ही चल गया है, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, PVC. नेक्स्ट चीज जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ योर मोनोमेरिक यूनिट्स. बहुत सिंपल है. कंडेंसेशन पॉलीमर्स, एग्जैक्ट कंडेंसेशन में क्या होता है, टू मोनोमेरिक यूनिट या टू सब्सटेंस एक दूसरे से कंडेंस होता है बट देयर इज रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है. सो दे आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोमर्स बाय रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स. मतलब यहाँ पे आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा. ओके. स्मॉल मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक H2O हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है. ठीक है. मतलब बड़ा मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा, छोटा मॉलिक्यूल जरूर बाहर निकलेगा. ठीक है. The molecular mass is not the integral multiple of monomeric unit. अभी जो आपका पॉलीमर बनेगा उसका जो molecular mass होगा that is not equal to molecular mass of your monomeric unit जितने आपने लिए थे.
क्यों? बिकॉज हमको यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिला है, स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है आपके मोनोमर से, राइट? तो मॉलिक्यूलर वेट तो ऑब्वियसली कम ही होगा, है ना? सो दे हैव ईस्टर एंड अमाइड लिंकेजेस इन देयर मॉलिक्यूल्स। कौन सी लिंकेजेस है? ईस्टर एंड अमाइड लिंकेजेस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास पॉलीअमाइड है, एक अमाइड है और एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH ये रिमूव हो जाएगा एज H2, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बन गया, NHCO बन गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे NH2 था तो अभी NH है, और यहाँ पे COH था तो अभी CO है, राइट? तो ऐसा चेन आगे कंटिन्यू करते जाएगी। यहाँ से फिर OH आएगा, फिर यहाँ से जो नया आपका ग्रुप आएगा, यहाँ से H आएगा, और फिर यहाँ से CONH बन जाएगा, राइट? तो ये चेन ऐसे कंटिन्यू होगी दोनों साइड से। सो दिस इज योर पॉलीमर विच इज नोन एज नाइलॉन 66, जिसको क्या बोला जाता है? नाइलॉन 66। फाइन, आई होप दिस मच इज क्लियर। सो ऐसे ही कुछ पॉलीमर है, पॉलीअमाइड जिसे हम नाइलॉन्स बोलते हैं, या पॉली ईस्टर्स, ठीक है? तो ये जो पॉलीमर्स है ये कौन से मोनोमर्स से बनते हैं? दे आर जनरली मेड अप ऑफ बायफंक्शनल मोनोमर्स, ठीक है? बायफंक्शनल ग्रुप होने चाहिए मोनोमर्स में, तभी कंडेंसेशन पॉसिबल होता है, ओके? तो जनरली दे आर मेड अप ऑफ कंडेंसेशन। इसमें आपको बाय प्रोडक्ट मिलता है, ये याद रखिएगा, इसमें आपको बाय प्रोडक्ट मिलता है, ओके? आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। सो शैल वी मूव फर्दर? ओके, एग्जाम्पल्स याद रखिएगा जितने भी है आपके, फाइन? चलो, so the next is on the basis of intermolecular forces. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे हमने 4 इसमें पॉलीमर को क्लासिफाई किया था। फर्स्ट वन इज इलास्टोमर, ठीक है? तो इलास्टोमर्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट द नेम सजेस्ट, इलास्टोमर्स, इट इज समथिंग रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, राइट? तो इलास्टोमर्स आर रबर लाइक सॉलिड पॉलीमर्स दैट आर इलास्टिक इन नेचर। उसमें इलास्टिसिटी होगी, ठीक है? दे आर सॉलिड लाइक, रबर लाइक पॉलीमर, इसलिए उन्हें बोला जाता है इलास्टोमर्स। क्योंकि रबर में क्या होता है, रबर में जनरली इलास्टिसिटी होती है ना? when you applied a certain force or little force on a rubber like material, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो स्ट्रेच होगा, है ना? इट इज एबल टू स्ट्रेच। लेकिन वो टूटता है क्या? नहीं टूटता। जब आप वो फोर्स रिलीज कर देते हो तो दैट rubber will regain its original shape, and that is the property of elastic, right? That is elastic character, that's why they are known as elastomers, ठीक है? सो द इनमें जो पॉलीमर्स चेन होती है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही वीक होते हैं, दे हैव वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसी वजह से जब आप थोड़ा भी फोर्स अप्लाई करते हो ऐसे पॉलीमर्स पे तो वो क्या हो जाता है, वो स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है? बट जब आप स्ट्रेच रिलीज करते हो तो वही चीज में क्या हो जाता है, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। लाइक रबर बैंड, रबर बैंड तो आप सभी ने देखा है ना? तो आप रबर बैंड पे थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है, टूटता नहीं है, टूटता नहीं है, ठीक है? एक लिमिट तक नहीं टूटता, बट आफ्टर सर्टेन लिमिट अगर आप फोर्स अप्लाई करे ही जा रहे हो तो वो टूट जाता है, ठीक है? अभी जब आप थोड़ा सा लिटिल फोर्स अप्लाई करते हो तो वो क्यों नहीं टूटता? बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंकिंग विच इज प्रेजेंट इन देम, ठीक है? क्योंकि उसमें है ना थोड़ी बहुत क्रॉस लिंकिंग होती है जो दो चेन को एक दूसरे से पकड़ के रखती है, ठीक है? तो इसी वजह से वो थोड़े से फोर्स से नहीं टूटता, कोई टीयरिंग नहीं होती, ठीक है? और जब फोर्स रिलीज कर देते हो तो इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है? वल्कनाइज्ड रबर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर्स, रबर बैंड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर्स, देन यू हैव नियोप्रीन इज द रबर व्हिच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर्स, ठीक है? ये जो है ना ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत स्ट्रेची होते हैं, ठीक है? जो रबर होता है ना नेचुरल रबर, वो बहुत गमी और स्टिकी होता है, ठीक है? उसमें उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती, जब हम उस पर प्रोसेसिंग करते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है। तो यही सारी चीजें आपको याद रखनी है। टीयरिंग क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज उसमें क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट है, थोड़ी है लेकिन है, ठीक है?
ये देखिए वल्कनाइज रबर में क्या हो रहा है, वी हैव इंट्रोड्यूस सल्फर टू द क्रॉस बॉन्ड, ठीक है, ऑफ द पॉलीमर चेन। इसलिए वल्कनाइज रबर जो होता है ना, जो टायर में जो रबर होते हैं, आपके बाइक्स के टायर में जो रबर होता है, दैट इज वल्कनाइज रबर। ओके, वो बहुत ही हार्ड होता है क्योंकि हमने क्या किया, उसकी क्रॉस लिंकिंग बढ़ा दी, है ना। तो जब क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाती है तो हार्ड हो जाता है रबर, यहाँ पे उतनी क्रॉस लिंकिंग नहीं है। ओके, आई होप इलास्टोमर्स इज क्लियर टू एवरीवन। एग्जांपल याद रखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्लास इज फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, दे आर थ्रेड लाइक, ठीक है, दे कैन बी इजीली वूवन, ठीक है, हमने बहुत सारे फाइबर्स देखे हैं इन आवर डेली यूज, हम बहुत सारे फाइबर्स देखते ही है। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जनरली उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं या फिर डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होता है, ठीक है। अभी जब इसकी जो इलास्टिसिटी होती है ना वो कम होती है, इलास्टोमर्स में इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, फाइबर्स में इलास्टिसिटी थोड़ी कम होती है, एंड दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। जब हम पॉलीअमाइड एंड पॉलीईस्टर बोथ आर फाइबर्स, पॉलीअमाइड्स एंड पॉलीईस्टर, अभी जब हम पॉलीअमाइड्स की बात करते हैं ना तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। और पॉलीईस्टर की जब हम बात करते हैं, पॉलीईस्टर फाइबर की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो बॉन्डिंग होती है दैट इज डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, ठीक है। दे हैव शार्प एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल क्या है, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, देन टेरिलीन, ठीक है, ऑल दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो ये जो पॉलीअमाइड का है ना एग्जाम्पल, ये हमने अभी देखा है, नाइलॉन 66 इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग। तो ये प्लास्टिक्स के अंडर आते हैं, दे कम्स अंडर द हेड प्लास्टिक। प्लास्टिक, इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ना, दे आर समवॉट इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। अभी देखिए फाइबर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे, इलास्टोमर्स में वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे। थर्मोप्लास्टिक में ना बीच वाले फोर्सेस होते हैं, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते और इतने वीक भी नहीं होते। सो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर लीनियर एंड स्लाइटली ब्रांच long chain of molecules capable of softening on heating and hardening on cooling, ठीक है। मतलब आप अगर इस प्लास्टिक को हीट करोगे, अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और जब आप इसको कूल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी, फिर आप इसको हीट करोगे फिर वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आप उसको कूल करोगे तो वो हार्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं है, ठीक है। हम उसको इजीली रिमोल्ड कर सकते हैं, हम उसको इजीली रिसाइकल्ड कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक को। दिस आर द पॉलीमर व्हिच कैन इजीली बी रिसाइकल्ड, दे कैन इजीली बी रिमोल्डेड, ठीक है। तो यही चीज आपको याद रखनी है। दे आर नॉट क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर, दे आर लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है। एग्जाम्पल पॉलीस्टीरीन एंड पीवीसी, ओके। सो थर्मोप्लास्टिक समझ में आ गया सबको। दे आर soften on heating and hardening on cooling, मतलब अगर आप किसी प्लास्टिक को हीट कर रहे हो तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, वो फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप उस फ्लूइड को जिस मोल्ड में चाहे उस मोल्ड में मोल्ड कर सकते हैं, राइट। तो आफ्टर कूलिंग इट बिकम हार्ड, okay, so that's why we are saying it is remolded, it can be remolded, it can be recycled. थर्मोसेटिंग में क्या होता है फिर, थर्मोसेटिंग इज नॉट लाइक थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग में क्रॉस लिंकिंग होती है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है, इसमें क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट है। सो व्हेन दे आर हीटेड दे स्टार्ट क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द पॉलीमर चेन। जब आप इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हीट करते हो तो क्या होता है, वो हार्ड बनना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होती है। दे बिकम हार्ड एंड इनफ्यूजिबल मास बन जाएगा, फिर आप उसको रिमोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार हीट किया आपने अंडर प्रेशर तो फिर वो क्रॉस लिंक हो जाएगा, एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा विच यू कांट बी रिमोल्ड। उसको रिसाइकल हम बार बार नहीं कर सकते,
So thermosetting polymers are those polymers which can't be remolded and which can't be recycled. Okay, I hope this much is clear. Bakelite is the example of thermosetting polymer. बेकलाइट किसका एग्जांपल है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जांपल है. अगर जनरल हम देखें कि किस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ये बनता है, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो है दे आर मेड अप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमराइजेशन जो है दैट इज मेड अप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन. ओके, तो इतना याद रखिएगा. थर्मोसेटिंग डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग. ठीक है, एंड दिस soften on heating and harden on cooling. Okay, I hope this much is clear. बहुत आसान है. So last is on the basis of monomer. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है भी और नहीं भी है, जनरली उस हेड में नहीं डालते हम इसको. ये उस बेसिस पे है कि किस तरीके का मोनोमेरिक यूनिट आपके पॉलीमर में प्रेजेंट है. ठीक है, फर्स्ट वन इज होमोपॉलीमर. होमो मतलब सेम, सिंगल, राइट, आइडेंटिकल. तो अगर आपका पॉलीमर सेम मोनोमेरिक यूनिट से बना है, मतलब जितने भी रिपीटिंग यूनिट है वो सारे के सारे आइडेंटिकल है, एक तरह के मोनोमेरिक यूनिट से आपका पॉलीमर बना है, तो आप उसको बोलोगे होमोपॉलीमर. एग्जाम्पल इज पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीप्रोपिलीन, नायलॉन 6. ठीक है, कोपॉलीमर में क्या होता है? को मतलब ग्रुप, लाइक दो लोग मिलके जो होता है. A polymer consists of monomers of different chemical structure. ठीक है, इसमें जो मोनोमेरिक यूनिट होंगे वो डिफरेंट होंगे. ठीक है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ आइडेंटिकल मोनोमेरिक यूनिट, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट. ये दो मोनोमर है, एक सर्कल और एक ट्रायंगल. ठीक है, तो जब इससे आपका कोई पॉलीमर बनेगा तो दैट इज कोपॉलीमर. नायलॉन 66 इज द एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर. हमने अभी पीछे देखा था नायलॉन 66 में एक तरफ NH2 ग्रुप था, एक तरफ COOH ग्रुप था, तो दोनों डिफरेंट मोनोमर हो गए ना. बट इन केस ऑफ पॉलीइथीन कौन सा था मोनोमेरिक यूनिट? इथीन था. नंबर ऑफ इथीन आएंगे एंड दे विल फॉर्म पॉलीइथीन, राइट. तो ये सेम हो गया, यहाँ पे डिफरेंट हो गया. So this thing you have to keep in mind. Now there are several classes of copolymer, right? अभी हमने तो बोल दिया, कंसिडर कीजिए A is one type of monomer and B is another type of monomer. ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल कोपॉलीमर और जिसको हम बोलते हैं रैंडम कोपॉलीमर, आप रैंडम कोपॉलीमर के नाम से याद रखिएगा. ओके, रैंडम मतलब जब ये दो रिपीटिंग यूनिट कहीं पे भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके पॉलीमर चेन में. ठीक है, कंसिडर A is the black in color and B is pink in color. ठीक है, तो आप देख सकते हो इन दिस फिगर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे कोई फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं पे इतने सारे A, कहीं पे सिर्फ दो, कहीं पे सिर्फ एक, राइट. सो दिस इज when the two or more different repeating unit are distributed randomly. तो उससे जो कोपॉलीमर बनेगा that is random copolymer. Next is alternating copolymer. इसमें जब आपके दोनों मोनोमेरिक यूनिट A एंड B दे आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर. ठीक है, यहाँ पे ये वाला फिगर, राइट, देखिए A B A B A B अल्टरनेट सीक्वेंस में अरेंज्ड है. सो दिस इज अल्टरनेटिंग पॉलीमर. नेक्स्ट इज ब्लॉक पॉलीमर. ब्लॉक पॉलीमर में क्या होता है? एक पूरा सीक्वेंस होगा एक तरह के मोनोमेरिक यूनिट का और फिर उसके बाद आएगा दूसरा मोनोमेरिक यूनिट का एक सीक्वेंस. ठीक है, मतलब देखिए सेकेंड नंबर फिगर, यहाँ पे ए थे, फिर आपका बी आया, फिर आपका ए आया, मतलब ब्लॉक आया, एक पूरा ब्लॉक आया 5 या 6 रिपीटिंग यूनिट का, राइट. जरूरी नहीं है 5 या 6, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल. ठीक है, फिर आएगा बी, फिर ए, फिर बी. तो इस तरीके से जब ब्लॉक में बनता है तो दैट इज ब्लॉक कोपॉलीमर. ग्राफ्ट कोपॉलीमर में ये होता है कि एक तरह के मोनोमेरिक यूनिट की लीनियर चेन होती है. कंसिडर यहाँ पे बी की एक लीनियर चेन है और जो उसकी साइड चेन होगी ना, ब्रांचेस जो होगी, दैट इज ऑफ अनदर टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट. ठीक है, तो ए की ब्रांचेस है और बी की लीनियर चेन है. यहाँ पे देखिए ए का लीनियर चेन है और बी की ब्रांचेस है, राइट.
So I hope this much is clear. Just try to remember this with the help of diagram only. Okay? इसमें इतना कुछ नहीं है याद रखने लायक. जस्ट रिमेम्बर कि क्या हो रहा है, अल्टरनेटिंग में क्या होता है, ब्लॉक में क्या होता है, ग्राफ में क्या होता है, रैंडम में क्या होता है, एंड द वर्ड इटसेल्फ सेज एवरीथिंग. ठीक है, वर्ड से ही पता चल जाएगा आपको किस तरीके का पॉलीमर है. फाइन, आई होप दिस मच इज क्लियर. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर इज क्लियर. सो homopolymer, copolymer, just remember this. Fine, so see you in the next class जिसमें हम आगे के polymers पढ़ेंगे particular. Okay, so till then keep learning, keep practicing. Thank you.